Good morning, dear students. So, in last lecture, we have studied about some attributes of the population. In today's lecture, we are majorly focusing on the population growth. So, as we have initiated last time, that there are some factors which are affecting the population density. The factors or processes, you can say, which are fluctuating the population density. Okay. Because practically we know that every time the density of the population is not similar year to year or decades to decades. Okay, it is going to be changed. So ये density change क्यों हुई? Okay, obviously there are some processes which are affecting the population growth, and so that population density, whether it is affecting positively or it is affecting negatively. If it is affecting positively, it is going to increase the population density. If it is affecting negatively, obviously it is going to affect population negatively and decreasing the population density. तो यहाँ पे ऐसे 4 फैक्टर है, that is natality, mortality, immigration and emigration. So how these 4 factors are affecting the population? So natality, which is denoted as B, okay, उसके लिए symbol हम B use करते हैं. It is the number of births in a population during a given period. Okay, तो ये ऐसे अगर आप देखने जाओ तो ये एक birth rate ही है और कुछ नहीं है. Okay, natality is the birth rate. It is the number of the births in a population during a given period. तो ये बर्थ रेट है, इसीलिए इसका सिंबल जो है वो हमने बी दिया हुआ है. तो अब देखिए, अगर बी इंक्रीज होगा, मतलब नेटेलिटी इज इफ इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि बर्थ ज्यादा हो रहा है. देन मोर्टालिटी, दैट इज डिनोटेड एज डी, क्योंकि ये डेथ रेट है. सो इट इज द नंबर ऑफ द डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. ओके, तो नेटालिटी इज द बर्थ रेट, मोर्टालिटी इज द डेथ रेट. ओके, तो डेथ रेट बढ़ेगा, मोर्टालिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. इमिग्रेशन, दैट इज आई, it is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during a given time period. Okay, number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during a given time period. Immigrant हम बोलते हैं, right? हम वीजा प्रोसेस में ये सुनते हैं बहुत बार, इमिग्रेशन वीजा. ओके, इमिग्रेंट मीन्स सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स अगर एक कन्फाइंड जोन में बढ़ रहे हैं एंड दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, ओके, किसी और लोकेशन से आ रहे हैं, वो उस जोन के तो नहीं थे लेकिन हैं वो सभी एक ही स्पीसीज के, तो वो पॉपुलेशन एड ऑन होने वाला है और इसीलिए इमिग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ने वाली है. से फॉर एग्जांपल कनाडा, कनाडा का खुद का पॉपुलेशन इतना नहीं है, but we know that the people from Bharat are actually going to Canada. Okay, and they are being immigrants of the Canada. Because of that, population of Canada is increasing. Okay, density वहां पे बढ़ रही है because of the immigration process, right? तो आप देखो यहाँ पे नेटालिटी की वजह से भी डेंसिटी बढ़ रही है, इमिग्रेशन की वजह से भी डेंसिटी बढ़ रही है. द फोर्थ factor, that is emigration, that is denoted as E. It is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during a given time period. अब जैसे यहाँ से जा रहे हैं कनाडा, तो यहाँ से तो कम ही हो रहे हैं, तो यहाँ से वो एमिग्रेंट है, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से ये एमिग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन उतनी ही कम होगी. दे आर गोइंग समवेयर एल्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने वाली है. तो आउट ऑफ दिस 4, 2 आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड 2 आर
डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे नेटालिटी और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, मोर्टालिटी और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, और ये रेट है, तो रेट है तो उसका कोई इक्वेशन भी बनेगा। आप देखो यहाँ पे सिंबल के हिसाब से भी आपको बताया पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज डिनोटेड एज एन। ओके, because of the immigration plus because of the natality, that is the birth rate, it is also increasing, so it is also plus mortality और immigration, उसकी वजह से population density कम हो रही है, तो उसके लिए सिंबल दिया हुआ है नेगेटिव माइनस। तो natality and immigration increase the population density and mortality and immigration decrease the population density. So if n is the population density at time t, ये ऐसे आपने इक्वेशंस फिजिक्स में भी पढ़े हैं, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t plus 1 is n t plus 1 is equal to nt plus p plus I whole into bracket minus d plus e whole into bracket। अभी आप देखिए n t plus 1 मतलब टाइम कुछ पास ऑन होने के बाद, अब इस टाइम को हम ऐसे स्केल पे ले जाएं, सपोज इट इज 1 ईयर, तो n इन 2020, यहाँ पे t plus 1 n इन 2021। ये जरूरी नहीं है कि एक साल का ही गैप हो, जैसे हम 10 साल के बाद इंडिया में पॉपुलेशन चेक करते हैं ना, तो भारत में पॉपुलेशन चेक करने के लिए यही इक्वेशन है, सभी जगह पे यही है, कितना बर्थ रेट हुआ, कितने इमिग्रेशन हुए, कितने कितने डेथ हुए और कितने इमिग्रेंट हैं, तो उनका सम अप जब करेंगे तो पता चलेगा एन टी दैट इज 2011 एन टी प्लस 1 दैट इज 2021। अब ये n क्या है, इट इज एब्सोल्यूट नंबर इन 2011 एन टी। ओके, और मतलब जहां पे आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया दैट वन, एन टी प्लस 1 दैट इज पॉपुलेशन नंबर इन 2021। तो इनका जब सम अप करेंगे तो 2021 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये हमें पता चल सकता है। ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस इफ b प्लस आई इज मोर देन d प्लस ई। सीधी बात है, p प्लस आई की अगर वैल्यू d प्लस ई से ज्यादा है तो डेंसिटी इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज, अगर इससे उल्टा है इट इज गोइंग टू डिक्रीज। So under normal conditions, births and deaths are important factors influencing population density. Normal condition जहाँ पे immigration नहीं हो रहा है, क्योंकि immigration and emigration ये जो है ये नेचुरल नहीं है। ओके, नेचुरल तो बर्थ और डेथ ही है, राइट। Immigration and emigration have importance only under special conditions. For example, for a colonizing new habitat, immigration may be more significant to population growth than birth rates. Okay, तो ऑब्वियस है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन तो स्पेशल कंडीशन में ही आएंगे, जैसे कि कोई एक नया कॉलोनी डेवलप करना है, राइट, कॉलोनाइजिंग अ न्यू हैबिटेट, तो वहां से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म शिफ्ट करते हैं टू अ न्यू हैबिटेट और नई कॉलोनी अपनी डेवलप करते हैं, दैट इज एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में भी मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। ऐसा क्यों है? रीजन इज इमिग्रेशन जो है वो क्विक दिखता है, उसका इफेक्ट जैसे ही पॉपुलेशन में वो एंटर हो रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग ऑब्वियसली द डेटा। बर्थ रेट के लिए तो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पॉपुलेशन, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज पॉपुलेशन। ओके, उसके ऊपर ये डिपेंड होगा।
सब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कुछ ग्रोथ मॉडल्स भी हैं। ओके, एक ग्रोथ मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आप देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या इफेक्ट होती है। डे 0 मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस दिन ये पैरामीशियम है, आप देखो वहां पे एक ही पैरामीशियम है। ओके, डे 1 एक दिन में ये डबल हो गए, डे 2 में उसके भी डबल। ओके, 2 raised to n के हिसाब से ये बढ़ रहे हैं। ओके, बिकॉज बाइनरी फ्यूजन के जैसे इनका पूरा प्रोसेस हो रहा है। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पैरामीशियम। डे 6 पे आप देखिए कितना बड़ा पॉपुलेशन हो गया यहाँ पे। ओके, डेंस हो गया, यहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे फुल डेंस हो चुका है। So resources, that is food and space, are essential for the unimpeded population growth. Okay, unfluctuated undisturbed population growth के लिए okay, food and space are essential. Okay, if resources are unlimited, each species shows its full innate potential to grow in number. अब जैसे इस पैरामीशियम को ही ले लीजिए, यहाँ पे स्पेस तो दिया हुआ है पैरामीशियम को ग्रो होने के लिए, बट सपोज यहाँ पे इसको फूड नहीं दिया गया, so on what basis it is going to grow and it is going to reproduce? वो नहीं हो पाएगा, स्लो ग्रोथ हो जाएगी और अल्टीमेटली पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो जाएगी। सो रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड हैं, ओके, यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे इसीलिए पैरामीशियम का इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। स्पेस और फूड उसको अगर अनलिमिटेड मिल रहे हैं तो फिर इननेट पोटेंशियल है, मतलब इन नेचर, इननेट का मतलब आपको पता ही है, इट इज इन नेचर, बाय नेचर सभी ऑर्गेनिज्म को ये पोटेंशियल दिया हुआ है कि वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। कंडीशन यही है, इफ दे आर हैविंग unlimited resources of food and unlimited space to survive, then the population is obviously growing in an exponential, or you can say on the geometric fashion. Okay, geometric way में ये population बढ़ती है। Remember 11th standard chapter number 15, plant growth, growth patterns, arithmetic and geometric growth, ये मैंने आपको जब 11th में पढ़ाया था। At that time I have said the same attributes you are going to learn in 12th standard. Okay, लेकिन वहां पे टाइटल सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है, सेम कंसेप्ट। तो एक्चुअली वी आर रिपीटिंग द 11th standard right now. So if population size is n and birth rate, that is per capita birth, is small b, समझिएगा इस इक्वेशन को। If the initial population size is n and the birth rate, or you can say per capita birth, is small b, death rate, that means the per capita deaths, is small d, then the increase or decrease in n, that is number n, during a unit time period t, that is dn upon dt. Okay, ये इक्वेशंस आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, इस तरह के ही dn upon dt. ओके, विल बी, अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज इज एन, ऐसा आपको बोला गया इनिशियल, बर्थ रेट जो है दैट इज बी, डेथ रेट दैट इज स्मॉल डी। तो जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगा, राइट, दैट वी नो। अगर बी की वैल्यू ज्यादा आएगी बर्थ रेट की तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा कंपेयर टू डी, और अगर डी की वैल्यू कंपेयर टू बी ज्यादा है तो फिर पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। तो इसीलिए इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर एन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फेज टी, तो उसका जो रेट है इंक्रीज और डिक्रीज का जो भी है, दैट इज dn अपॉन dt विल बी लाइक दिस। dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस d इंटू n। b माइनस डी अब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसका जो भी नंबर है। अब आप देखो अगर b की वैल्यू ज्यादा होगी और d की कम होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, इंटू n। ओके, तो dn अपॉन dt ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है dn अपॉन dt। अगर ये पॉजिटिव नंबर निकल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, और अगर b माइनस डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियसली ये जो सम अप होगा उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट नेगेटिव है।
तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव है, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। लेट b माइनस डी इज इक्वल टू आर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, b माइनस डी की जो वैल्यू है, चाहे वो जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज कंसिडर्ड एज आर। नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में ये आर जो है उसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो इसको अच्छे से तैयार कर दीजिए। सो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, क्योंकि b माइनस डी की वैल्यू हमने ले ली है, दैट इज आर। तो अब R की डेफिनेशन वो इंपॉर्टेंट है। R is intrinsic rate of natural increase. R is intrinsic rate of natural increase. Okay, is an important parameter for assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. R का importance क्या है? एक तो R की definition क्या है? Intrinsic rate. Intrinsic मतलब उसका खुद का, within, innate. Okay. जब हम दूसरे बाहर के फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज आर जो है इट इज बी माइनस डी। अगर बी की वैल्यू डी से ज्यादा है तो आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर बी की वैल्यू डी से कम है मतलब डेथ रेट ज्यादा है तो आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इंक्रीज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये नेगेटिव भी हो सकता है। और आर का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग, फॉर स्टडिंग impacts of any biotic or abiotic factor on population growth। अगर R की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ग्रोथ रेट कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पॉपुलेशन के ऊपर किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये पक्का है। हो सकता है कि वहां पे कोई प्रेडेटर आ गया है, ओके, हो सकता है कि वहां पे कोई कंडीशन एबनॉर्मल हो चुकी है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया है, वाटर की स्कैर्सिटी हो गई है, फूड की स्कैर्सिटी हो चुकी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फिर क्या, तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसी कम्युनिटी नई एक डेवलप हुई है जो उस पॉपुलेशन को हेल्प कर रही है सर्वाइव करने के लिए, या तो वहां पे वाटर, फूड, स्पेस, ये सभी चीजें, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, एबायोटिक फैक्टर्स, सो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। सो अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स के आपको आर के वैल्यू बताए गए हैं। नॉर्वे रेट जो है उसका आर वैल्यू है 0.015, फ्लोर बीटल का जो आर वैल्यू है दैट इज 0.12, ये सारे एक्सपेरिमेंटल है। पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981 का ये डिजिट आपको दिया हुआ है, दैट इज आर वैल्यू, दैट इज 0.0205। ओके, ये आर वैल्यूज है। जितना आर वैल्यू आपको ज्यादा मिल रहा है ग्रोथ रेट इज फास्ट। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज, अब इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लेके आए डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन के हिसाब से, इसको अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर हमारा इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई रेस टू आर टी। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इंटू ई रेस टू आर टी। Okay, nt, that is number of individuals after passing the time t, n0, okay, that is actually initial population, e तो हमें पता है base of the natural logarithm, rt, r that is intrinsic rate of natural increase। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार बोलने में यहाँ पे हम गड़बड़ी करते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ बोल लेते हैं, तो वो ग्रोथ नहीं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है वर्ड यहाँ पे। T is the time frame you have studied. So where NT is the population density after time T, N0 is the population density at time 0, means initial population of the experiment.
R intrinsic rate of natural increase, E is the base of the natural logarithm और उसकी वैल्यू हमें पता है 2.71828. ये फिजिक्स में आपने परफॉर्म किया ही है. ओके, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एंड सेकंड इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक है, ओके, और लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ओके, वो अलग तरह से पूरा ग्रोथ पैटर्न है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें लगता तो है कि ऐसे ग्रोथ होती होगी, लेकिन सभी पॉपुलेशन के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा नहीं है कि दे आर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेस फॉर देयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ओके, सो देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर, ओके, नेचुरली तो ऐसा किसी के लिए नहीं है, हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेस फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ओके, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं नेचर में. अगर अनलिमिटेड नहीं है तो फिर क्या होगा? इट इज लीडिंग टू द कंपटीशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज आपके सामने लिमिटेड है, तो ऑर्गेनिज्म विद इन द स्पीसीज एंड अदर देन द स्पीसीज, ये सभी एक दूसरे के साथ compete करते हैं फॉर द रिसोर्सेज, फॉर गेटिंग वाटर, फॉर गेटिंग स्पेस फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, फॉर गेटिंग फूड एंड ऑल. इवेंचुअली क्या होगा? जब कंपटीशन होगा एक दूसरे के साथ, तो कंपटीशन में कौन जीतता है ये हमें पता है, हु इज फिट एंड फाइन. तो अगेन डार्विन इज कमिंग ओवर हियर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. बाकी जो हैं वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएंगे. यहाँ पे कंपटीशन से एलिमिनेट होने का मतलब है दे आर गोइंग टू बी listed in endangered species and ultimately they are going to be extinct. okay, ये इस ग्लोब से slowly gradually extinct हो जाएंगे. क्यों? मतलब देखने नहीं मिलेंगे. क्यों? कि कंपटीशन में ये अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए. that's why. So in nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. It is called carrying capacity और उसका सिंबल है K. इसको समझिए, ये carrying capacity के डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है. So in nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number. Say for example, in India, in भारत, लैंड एरिया कन्फाइंड है, फिक्स है, वो बढ़ने वाला नहीं है, हमें पता है. डे बाय डे फार्म्स कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कम हो रही है, लेकिन जितना भी हमारे पास अवेलेबल है वो एक पर्टिकुलर नंबर को ही accumulate कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. से फॉर एग्जांपल, राइट नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड इन कोरोना पेंडेमिक, हमारे पास जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी था, इट वाज ओनली टू accommodate a particular number of the patients. लेकिन क्या हुआ? एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ गए तो पूरा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो डैमेज हुआ, राइट? तो ऐसा ही पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ भी है. वहां पे पेशेंट्स की डेंसिटी बढ़ गई तो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ. तो यहाँ पे भी नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा ही होता है. हर एक जोन में, नेचर में पर्टिकुलरली यू कैन से, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ओके, ऑल दिस रिसोर्सेज कैन एकोमोडेट और यू कैन से सपोर्ट अ गिवन पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर. उससे बियॉन्ड अगर जा रहा है, जैसे अभी का इंडियन पॉपुलेशन है, भारत का अभी का जो पॉपुलेशन है, राइट, उसके लिए सब कुछ हमें लगता है कि इट इज इनफ. ओके, easily available land area, easily available for their building the house and shops and all these things. Water easily available, food easily available. But what after next 15-20 years, if the same growth rate will be observed for the next 2 decades? This is not going to be easy for the community of Bharat, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है उसके नजदीक हम पहुंच चुके हैं.
and that maximum possible number which can be accommodated in a given habitat, okay, it is called carrying capacity. जैसे हम बोलते हैं कि किसी टू व्हीलर की कैरिंग कैपेसिटी, आप देखो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका जो आरसी बुक है आपके टू व्हीलर का, उसके ऊपर भी लिखा हुआ आता है कैरिंग कैपेसिटी, ओके, 2 adults. कार कैरिंग कैपेसिटी 4 adults, ओके, तो 4 से ज्यादा लोगों को आप कार में नहीं बिठा सकते, वो अलग बात है, आप बाइक पे 3 लोगों को बिठाओ तो यू आर टेकिंग बर्डन, और वो बर्डन की वजह से उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके व्हीकल के ऊपर होने वाली है। और ऐसा ही यहाँ पे अगर कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर रहे हैं तो उस हैबिटेट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, नेचर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। So the number which is maximum possible number can be supported or accommodated in a given habitat for the enough resources, that is called carrying capacity. So population with limited resources shows initially a lake phase, then phases of acceleration and deceleration, and finally asymptote. This type of the population growth is called Walhurst per logistic growth. Okay, it is called Walhurst per logistic growth. अब देखो यहाँ पे 2 ग्राफ आपको दिखाए गए, ये जो पिंक वाला ग्राफ है, दिस इज एक्चुअली, मतलब ये ग्राफ नंबर ए, इट इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कोई प्रेशर नहीं है और हैबिटेट ऐसा है जहाँ पे ऑल द रिसोर्सेज आर नेचुरली अवेलेबल एंड इजीली अवेलेबल, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा सा लेक फेज है और उसके ठीक बाद वो फ्लरिश कर रहा है, ओके, दैट इज इंक्रीजिंग। सो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। और इस ग्राफ का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ का शेप है, इट इज जे शेप्ड ग्राफ, इट इज जे शेप्ड कर्व, ओके, एक्सपोनेंशियल के लिए। और लिमिटेड रिसोर्सेस वाली अगर कोई पॉपुलेशन है उसके ग्राफ में आप देखिए तो पहले आपको एक अच्छा खासा लेग फेस देखने मिलेगा, मतलब लेग फेस का मतलब है इट इज लेगिंग, स्लो स्पीड से ग्रोथ हो रही है। उसके बाद फेज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब लॉग फेस आपको देखने मिलेगा यहाँ पे इतना, और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद इट इज डिसेलरेशन, ओके, और वो स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, ओके, और ये जो स्टेबल हो रहा है मतलब मैक्सिमम अटेन हो गया, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी, वहां तक पहुंचने के बाद इट इज कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर उसके बाद भी फोर्सफुली इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो इट इज एसिम्प्टोट, फिर उसका क्या होगा दैट वी डोंट नो। फिर वो पॉपुलेशन जो है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड थे, उसको अब और कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली इन सभी की डेथ होने वाली है। तो अल्टीमेटली ऐसा जो ग्राफ होता है उसमें नेक्स्ट फेज जो होता है वो डेथ फेज होता है डिसलरेशन के बाद, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड थे और उसमें भी आपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर दिया है पॉपुलेशन को, राइट, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है और उस कंपटीशन में सभी को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है उसमें आपको जो ग्राफ का शेप मिलता है दैट इज सिग्मोइड, ओके, एस शेप का, दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व, ओके, और उस ग्राफ को बोला जाता है वालहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, वीपी लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओके, एब्रिविएटेड फॉर्म में, राइट। इसका भी इक्वेशन है, वालहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड एज dn upon dt is equal to rn into k minus n divided by k। r की वैल्यू हमें पता है that is b minus d। तो देखो dn upon dt is equal to rn, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का था ही यहाँ तक, लेकिन उसमें एक अट्रीब्यूट ऐड हुआ है that is k, कैरिंग कैपेसिटी, तो k minus n divided by k, ये एक ऐड हुआ है इसके अंदर, where n is the population density at time t, R is the intrinsic rate of the natural increase, ये हमें पता है, K is the carrying capacity of the population in that habitat। For most animal populations resources for growth are limited, हम सबके लिए, तो हम सब भी इसी ग्रोथ मॉडल को फॉलो करते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ को। So the logistic growth model is more realistic। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो इतना रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि उतना अनलिमिटेड रिसोर्स एक साथ पूरी पॉपुलेशन को कभी भी मिलने वाला नहीं है, ओके।
fine. Okay, so डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इसको आप 11th के आपके 15 चैप्टर के ग्राफ जो है उसके साथ मैच करिए. ओके, और उसको भी इसके साथ स्टडी करिए. सो आज के लिए इतना ही. सो वी आर कंप्लीटिंग ओवर हियर राइट नाउ. ओके, एंड देन in next lecture we will be discussing about some more topics. Okay, if you are having any doubt, any queries regarding today's lecture, please contact me. Okay, through call, through WhatsApp, through message, whatever may be your way. Okay, till then, stay safe, have a nice day.